Hi everyone, welcome to the brand new podcast where me, Miss X, And me, Mr. Y. will be taking up few questions and will be giving our input, as in giving advice from a girl's perspective and a Guy's perspective. if you enjoy this podcast, please press the like button and share this podcast with your friends. So let's start with the question. Alhamdulillah, my husband is good and caring. It's been 6 months of my marriage and at times I feel totally helpless. I live in joint family system. My room is just beside the room of my Jethani. My Jethani's TV is placed in the lounge for everyone to watch. They don't have any TV in their room, whereas I have my own TV in my room. But my husband denied to have a cable connection from the first month of our marriage, saying कि Jethani ko bura lagega, you are watching separately while she can't. I somehow managed to overcome this one. Because I'm a working woman and most of the time I'm out of home, so watching TV is not something I always wish for. Secondly, just yesterday I asked him to turn the AC on because our room remained quite heated, for which he denied too, saying कि बराबर में ही compressor लगा हुआ है, गर्मी उनके कमरे में जाएगी. So I can't allow until and unless they have their own AC functioning. Listening to this, I just told him कि it's been 6 months, you haven't even switched it on for even 10 minutes. ऐसे तो ख़राब हो जाएगा. Upon which he said इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, सबका बंद कर रखा हुआ है. वक्त आने पे चला लेंगे. But now I really hate it. I'm actually very angry from inside. It is not that I don't care about them and all. I always try my best कि किसी भी तरह की complaint ना हो मुझसे किसी को. But certain things are beyond my control and I literally cry and at times I have arguments with my husband. जिसका end ये निकलता है कि whole night I have to sleep keeping anger inside me and yet acting normal. I have tried to convince him on different matters too, but I don't know that it won't work. But I know that it won't work. I've always dreamt of having an iftar dinner with him, but I know he won't get agreed upon that. Reason family में सब घर पे खाएंगे और हम बाहर क्या सोचेंगे सब. Please help. Yeah. So from my perspective, from Miss X perspective, what I would like to advise you is you, it says that you have an AC in your room which you cannot use because Jethani does not have an AC firstly. Secondly, you have a TV connection in your room but you don't have cable connection, so that TV is basically useless because you can't watch TV, right? So my advice for you would be to get a Mi Stick. Mi Stick is like a USB device just connected on your TV, and then you will have access to YouTube and all other Netflix and all other apps. Through that you can at least watch some TV shows on your own. You don't need a cable connection for that, and you can even invite your Jethani if you want. Come over and let's watch a TV show together, or let's watch some nice show together, and you can call her upon. Secondly, as for the AC, what you can do is, if you've not switched it on since like past 6 months, so अगर AC नहीं है तो you can always switch it on, call your Jethani, call their kids up, और उनको भी थोड़ा include करो, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा कि when you include the family, make it normal, तो I don't think they will have an issue. They will get used to it slowly and gradually. एकदम से he is right, और at some point कि एकदम से आप AC चला के बंद कर दो कमरा तो वो थोड़ा awkward लगेगा. तो if you have an AC, make it as a as a benefit कि भाई हमारे रूम में AC है, so let's sit over here and relax for a bit or watch a show for a bit. You can do that. And lastly, for the iftar pe jaane ki, you have a dream ki you want to go on iftar with him, so my advice again would be कि भाई go with your family, take everyone along, सबको लेके जाएं, enjoy करें, and then ask him के yeah, so you can go with the whole family, and then उसके बाद जो है, या फिर do one more thing, you know. So my advice for the last part would be कि send your Jethani and Jade for iftar, like send them over like a date, and when they're gone, they are having fun. उसके बाद plan something for yourself and your husband. That's it. So now we'll take the view from Mr. Y. Let's see what he has, what his advice would be over this issue. So there are like 3 or 4 issues, but let's go one by one. पहला इशू टीवी कनेक्शन का. आई डोंट थिंक केबल कनेक्शन का कोई इतना मसला होता है फ्रॉम अ कॉस्ट परस्पेक्टिव, बट वो इसलिए नहीं लगाना चाह रहा कि इशू होगा ना फैमिली के अंदर कि मेरा जो जहेज़ में आया हुआ टीवी है, जेठ जेठ नहीं कहेगी कि वो तो लाउंज में लगा हुआ है, और जो इन नई साहिबा का जो टीवी आया है वो कमरे में लगा हुआ है.
तो वो मज़े से अपनी शो देख रही है और मेरा जहेज़ का जो सामान है वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फेयर नहीं होगा ना उनके लिए। तो इशू खाली मी स्टिक का मेरे पर्सपेक्टिव से तो नहीं है कि मी स्टिक या कोई और एंड्रॉयड या कोई टीवी स्मार्ट टीवी डिवाइस वहाँ मतलब आप इंस्टॉल कर लें अगर उनके पास स्मार्ट टीवी ना हो। आई थिंक द इशू इज़ कि फड्डे होंगे। फ्रॉम गाइस पर्सपेक्टिव ही डज नॉट वांट कि ख़ानदान वाले बीवी के बारे में कोई बातें करें, कोई नई बहू आई हो उनके बारे में कोई झगड़े हो जाएं, कोई फसाद क्रिएट हो जाए स्मॉल इश्यूज़ के ऊपर। तो आई कैन सी द गाइस पर्सपेक्टिव। लेकिन इशू यही है कि फिर आप जॉइंट फैमिली में जब रहते हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है ना। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगी। बट एसी का एक और इशू है कि आजकल इतनी महंगाई हुई हुई वो लोग रह भी रहे हैं जॉइंट फैमिली के अंदर, दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं। इट्स पॉसिबल कि वो एसी का ऑन इसलिए नहीं करते कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए, और ये बहाना ही है। आप आगे अगर क्वेश्चन में देखें वो ये भी कह रहे हैं ना किसी ने ऑन नहीं किया एसी। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ फैमिली डिसीजन कि अभी एसी वेसी ऑन ना करो, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। since she's working, I think she can contribute and pay for it. Like for example, अगर 1-2 घंटा रात में इस्तेमाल कर लिया जाए, अगर बहुत ही गर्मी है या किचन काम करके, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अ गर्ल्स परस्पेक्टिव, आप किचन से काम करके हो, इट्स रियली हॉट इन द किचन, सो यू डू नीड 1 घंटे का या 1.5 घंटे का ब्रेक, यू नीड अ लिटिल बिट नॉर्मलाइज करने के लिए अपने आप आई को। डोंट थिंक वो किचन में काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो वो तो प्रॉब्लली जेठानी किचन में जाके पका रही तो होगी या चले सास। फ्रॉम जेठानीज परस्पेक्टिव उसके लिए एसी ऑन कर दे ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर दे, बट एसी को ऑन करना इट शुड बी अ नॉर्मल थिंग बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग, आई एम श्योर शी मस्ट बी नहीं, फिर कंट्रीब्यूटिंग। जेठानी क्या करेगी, वो लड़ेगी अपने मियाँ से जाके कि भाई हमारे कमरे में एसी क्यों नहीं है, हम लोग क्यों नहीं चला रहे एसी। तो फिर वही इशू क्रिएट हो जाएगा ना, तो तो वो फिर पूरी। एसी आप मेन बाहर लाउंज में लगा दें या किसी कॉमन रूम में लगा दें ताकि सब उसका बेनिफिट यूज़ कर सकें, इंस्टेड ऑफ यू ओनली यूजिंग द बेनिफिट्स ऑफ एसी। आप बाहर लगा दो, एक कॉमन लाउंज में लगा दो या ड्राइंग रूम में लगा दो या किसी ऐसी जगह लगा दो जहाँ सब लोग थोड़ा बैठ के थोड़ा टेक कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम द हीट ऑफ द कराची, बिकॉज कराची की गर्मी इट इज़ देयर, ये कोई इट्स नॉट अ लग्जरी एनी मोर, इट इज़ अ नीड, इट इज़ अ नीड ऑफ द एवरी हाउस। सो अच्छा, लास्ट इशू अफ्तारी का जो है उसमें अगेन आई कैन सी फ्रॉम द गाइस पर्सपेक्टिव कि अगर वो स्नीक आउट करेंगे अफ्तारी में तो फिर एक तो पहले वो ताने आएंगे ना। पहले एक तो मेरे माँ बाप से ही आते हैं ताने, उसके बाद जेठ जेठानी से भी आ सकते हैं ताने कि भाई बड़े वो तुम्हें घूमने फिरने का शौक़ है और फिर तुम बीवी के नीचे लग गए हो और हमारे साथ तो खाना नहीं खाते। और आई कैन सी दैट ही डजंट वांट टू क्रिएट एनी इश्यूज। बेसिकली द गाई जस्ट वांट्स टू फिट इन। वो नई नई शादी हुई, 6 महीने हुए हैं। मुझे लगता है सोल्यूशन इसका है कि बच्चा करें। यूँ ही बच्चा करेंगे तो वो बहू की वैल्यू बढ़ जाएगी फैमिली के अंदर, और फिर आई उसके डोंट बाद वो। थिंक सो, हाँ, आई यही है थिंक जी। दिस इशू विल स्टिल बी देयर, एसी का इशू वहीं रहेगा। इफ़ यू आर सेइंग महंगाई की वजह से एसी नहीं चला रहे तो बच्चे होने की वजह से तो कोई एसी का इशू सॉल्व नहीं होगा, टीवी नहीं चल पा रहा। खाने तक पे तो दुकान को आउटसाइड मतलब उसमें भी मसला हाँ, है तो अभी अब। तो वो रिश्ता कमज़ोर है ना, गठान अभी नहीं, वो उसको मजबूत करनी गठान को ना, तो बच्चा बच्चे के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। आई डोंट एग्री विद आई दैट। थिंक यही है सोल्यूशन। जब बच्चा पैदा होगा तो उसके बाद वो एसी भी अभी चला इतने सकते मसले हैं, हैं अभी ये जब कह के कि बच्चे जब को इतनी गर्मी लग रही अफोर्डिंग है। फैमिली नहीं है कि दे कांट इवन अफोर्ड एसी, दे कांट अफोर्ड अ टीवी केबल कनेक्शन, तो वो बच्चा अफोर्ड कर लेंगे, नहीं नहीं, आजकल वो इतनी केबल महंगाई कनेक्शन का है। तो आई डोंट थिंक मसला है, वो तो आप वैसे भी एक्स्ट्रा वायर लगा सकते हैं, तो उसमें नहीं खर्चे फिर का वो तो ये इशू नहीं मसला है होगा ना। कि इनका बच्चा कमरे में बैठ के टीवी देख रहा है, हमारा बच्चा बेचारा बाहर बैठ के टीवी देख रहा है। तो आई डोंट थिंक किड इज द सोल्यूशन। आई थिंक द सोल्यूशन इज कि इफ द गर्ल इज वर्किंग, अगर जेठानी भी काम कर रही है, इफ शी इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द हाउस, तो फिर इट्स अ म्यूचुअल थिंग। बट इफ द जेठानी इज इन द हाउस एंड शी इज डूइंग द हाउस चोर्स, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शी हैज़ नो कोई प्रिविलेज का यूज़ नहीं कर सकती। डेफिनेटली शी कैन यूज़, बट इफ दिस गर्ल इज वर्किंग शी कैन डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट इन द हाउस एंड थोड़ा वो चीज़ें अवेल कर सकती है। और स्पेशली अगर उसके पास है एसी है, टीवी है उसके कमरे में, तो शी कैन लेकिन वो डेफिनेटली झगड़े यूज। कैसे अवॉइड करेंगे जब वो ताने आएंगे, तो वो कैसे झगड़े तो फिर भी रहेंगे, झगड़े आप अगर आप अपना टीवी जो है ना बाहर भी लगा देंगे ना तो फिर भी वो मसले रहेंगे। अगर आप टीवी भी नहीं यूज़ करेंगे, आप एसी भी नहीं यूज़ करेंगे, आप सिर्फ खाना खाने भी बाहर चले जाएंगे ना तो झगड़े तो वहीं घर में। सो यू कांट स्टॉप लिविंग, यू हैव टू लिव इन दिस तो वर्ल्ड। सोल्यूशन निकाला ना कि इसके अंदर झगड़े भी सोल्यूशन ना हो। तो सोल्यूशन इज़ दैट कि आप भाई बाहर सबको खाने पे ले जाएं। आप कह दें भाई हम आपको सबको नहीं खाने पे अफोर्ड लेके कर जा सकते रहे होंगे हैं। ना, पैसे उनके पास आप कम होंगे जेठ और जब एसी नहीं जेठानी चल रहे। आप जेठ और जेठानी को कह दो कि भाई हमने आप दोनों के लिए प्लान किया है कि आप दोनों जेठ और बाहर। जेठानी भी ताने नहीं सुनने चाहते होंगे सास ससुर नहीं, के। अगर आप गिफ्ट करोगे तो सास ससुर नहीं ताने देंगे। आप कह दें कि हमने इन दोनों के लिए प्लान किया है कि ये दोनों थोड़ा इफ्तार डिनर पे चले जाएं, तो बहुत बेचारे इतना हमारे लिए काम करते हैं तो हमने इनके लिए प्लान किया। तो अगर आप इस परस्पेक्टिव से करोगे तो कल आपके जेठ और जेठानी भी आपके लिए इसी तरह कोई चीज़ अरेंज कर लेंगे। इट्स लाइक अ गिव एंड टेक थिंग, बिकॉज यू एंड ऑफ द डे यू नीड अ सोल्यूशन एंड दीज थिंग्स आर नॉट वेरी बिग कि आप इसमें
बहुत माइनर चीज़ें हैं, माइनर इश्यूज हैं जिसको आप टैक्टफुली सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि अनसॉल्व रहना भी विल मेक योर लाइफ मिजरेबल, बिकॉज आपको हर वक्त आप एक अंदर स्ट्रगल ही करोगे कि यू कैन नॉट इवन हैंडल दीज सिचुएशंस। मुझे लगता है शादी नहीं हुई तो अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ज़्यादा, अभी इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करके मतलब लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। मैं अभी भी समझता हूँ कि बेस्ट सोल्यूशन बच्चा है, एक दफ़ा बच्चा हो जाए तो उसके बाद टीवी भी चल जाएगा आई कमरे के डोंट थिंक अंदर बच्चे एज अ और सोल्यूशन। एसी भी चल जाएगा कमरे के अंदर, बच्चे के बहाना बना के सब कुछ हो जाएगा। और अफ्तार, हाँ वो अफ्तार कह सकते हैं ना कि हम नानी के यहाँ जा रहे हैं और फिर वो चुपके से जाके अफ्तार कर रहे हैं, ये भी सोल्यूशन है। हर चीज़ का हल बच्चा है, हमारे पाकिस्तान के अंदर बच्चा होना ज़रूरी है शादी के फ़ौरन बाद। वेल लेट्स सी, बिकॉज अभी 6 मंथ्स हुए शादी को, लेट्स सी 3 महीने बाद क्या रिजल्ट आउट क्या होता पता, है। अभी हमारी फॉलोअप के लिए जो ओपिनियन पोस्टर है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर हमें अपडेट करें कि उनका क्या कि उनका ओपिनियन है क्या, अबाउट दीज 3 इश्यूज, व्हाट विल दे सजेस्ट, वी नीड। एंड खुशखबरी कब आ रही है। क्या श्योर, वी नीड टू नो कि खुशखबरी कब आ रही है, सो वील कीप यू पोस्टेड कि खुशखबरी आई कि नहीं आई। So thank you guys for listening to this podcast. I hope you guys enjoyed it. If you have more questions, please send them in. The email is in the description of the channel, so Yeah. just please send in any questions and we'll happily come up with different perspectives from guys and girls. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye.